पिछले हफ्ते की अगर आप बात करें तो पिछले हफ्ते 4 दिन में महज 40 मिनट का ही काम हो पाया था, यानी जनता की कमाई के 35 करोड़ हंगामे की भेंट चढ़ गए थे। आज देखना यह है कि सदन में एक बार फिर शोर शराबा सुनाई पड़ता है या संसद की कार्यवाही सुचारू रूप से चल पाती है, बिना किसी हंगामे के चल पाती है। इसके अलावा हम बुलेटिन में बात करेंगे किसानों की भी। आज किसान दिल्ली कूच क्यों करना चाहते हैं, किसानों की मांगे क्या हैं और किसान संसद के घेराव के लिए निकलेंगे तो पुलिस प्रशासन ने क्या तैयारी कर रखी है। साथ ही आपको महाराष्ट्र में सीएम चेहरे को लेकर जो सस्पेंस बरकरार है वो भी बताएंगे कि आखिर कौन होगा महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री और क्या होने जा रहा है आज महाराष्ट्र में आज कितनी हलचल बढ़ी हुई है ये भी आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले बात संसद की कर लेते हैं, चूंकि संसद की कार्यवाही अब से थोड़ी ही देर में शुरू होने जा रही है। आज शीतकालीन सत्र का 5वां दिन है। अडानी और संभल के मुद्दे पर आज फिर हंगामा होने के आसार हैं। आज फिर विपक्ष सरकार को इन दोनों ही मसलों पर घेरने की कोशिश कर सकता है। चर्चा के लिए कांग्रेस ने बाकायदा कार्य स्थगन का नोटिस भी दिया है, यानी शुरुआत से ही पता चल रहा है कि विपक्ष का रुख क्या रहने वाला है। और देखिए कार्रवाई शुरू हो गई है, लोकसभा की कार्रवाई सीधा आपको इस वक्त हम दिखा रहे हैं। श्री जी लक्ष्मी नारायण, थैंक यू स्पीकर जी। माननीय मंत्री जी, The question number 81, the details of the total number of centers of excellency for skill development established सभापति जी प्रश्न का उत्तर सभा पटल पर sectors they focus on, the details of the number of COEs operational in coach each state district wise, the details of the number of beneficiaries trained by the COEs in each state, including the details of placements of employees outcomes, the details of the financial outlay for establishing and maintaining these COEs along with the funding pattern followed for their operation, whether government funded, public private partnership, etc. Whether there are any proposals to expand or establish additional COEs in the future across the country, especially in Andhra Pradesh. is Ministry of Health and Family Welfare and if not the regions thereof. Thank you, sir. as also National President of the Bharatiya Janata Party. Thank you, sir. Nadaji has served 3 terms as MLA and will keep positions. Congratulate the member of parliament on asking me a very pertinent question. Andhra Pradesh government has taken substantial steps and given a lot of credence and recognition to the space of skilling. I'd like to inform the House and the honourable member that the entire system of giving national recognition to centres of excellence is designed to bring more visibility to impactful, credible institutions. We are providing a national recognition to these institutions. The Ministry of Skill Development and Entrepreneurship issued guidelines with this regard in 2019. A total of 6 COEs have been recognized, given that status by the ministry. But apart from this, a total of 202 centers of excellence have been established with the help of our sector skill councils. The 36 तो देखिए सदन की कार्रवाई शुरू हो चुकी है और सदन की कार्रवाई शुरू हुए महज 2 मिनट बीते हैं, लेकिन ये दोनों मिनट ही हंगामे की भेंट चढ़े हुए हैं। सदन की कार्यवाही में विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है। अडानी और संभल के मुद्दे पर विपक्ष का जो गतिरोध है वो सदन के अंदर जारी है। खूब नारेबाजी की जा रही है। जो अडानी का मुद्दा है वो सदन में इस वक्त गूंज रहा है और अडानी के मुद्दे पर विपक्ष लगातार नारेबाजी कर रहा है। देखिए अभी क्वेश्चन आवर शुरुआत में होता है और इस दौरान जमकर हंगामा हमें देखने को मिल रहा है। विपक्षी सांसदों की आवाज अडानी के मुद्दे पर मुखर है। फिर से आपको सुनवाते हैं। A distinguished professor is deeply committed to the region's immense renewable energy potential. Under the visionary leadership of Nara Chandrababu Naidu Garu, Andhra Pradesh has recently introduced the AP Integrated Clean Energy Policy 2024, targeting the generation of 78.5 gigawatts of solar and 35 gigawatts of wind power over the next 5 years. Given Andhra Pradesh's prominent role in renewable energy and its potential to drive the state ambitious targets, I would like to ask the minister, is there any plan to establish a center of excellence for skill development and R&D in renewable energy in Andhra Pradesh to create a green workforce and strengthen the clean energy system, sir? Thank you. I thank the honourable member. It is true that Andhra Pradesh is a leader in the
apologies with regards to green jobs. The Honorable MPs asked me specifically about the green job sector. I'd like to inform him that out of the 36 sector councils, one of our councils relates specifically to the space of green jobs. And there's a lot of potential. For instance, the PM Surya Ghar Muft Bijli scheme is targeting 1 lakh jobs. देखिए, अडानी का मुद्दा है, संभल का मुद्दा है, जिस पर विपक्ष नारेबाजी कर रहा है, तो वहीं संविधान दिवस पर भी विपक्ष चर्चा की मांग कर रहा है। जो संविधान का मुद्दा विपक्ष की तरफ से उठाया जाता है और विपक्ष लगातार ये कहता है। अब महाराष्ट्र के चुनावों का हवाला दिया जा रहा है, हरियाणा के चुनावों का हवाला दिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि संविधान खतरे में है, चुनावी प्रक्रिया खतरे में है और इन व्यवस्थाओं पर चर्चा करने के लिए विपक्ष लगातार सदन के अंदर हंगामा कर रहा है। संविधान दिवस पर विपक्ष चर्चा करना चाहता है और इसके लिए जमकर नारेबाजी की जा रही है। इसके अलावा अडानी का मुद्दा भी गूंज रहा है। अडानी की गिरफ्तारी की मांग, अडानी पर जेपीसी गठित की जाए, ये मांग लगातार कांग्रेस के सांसदों की तरफ से, पूरे इंडिया अलायंस के सांसदों की तरफ से उठाई जाती है और संभल का मसला भी लगातार सदन के अंदर उठाया जा रहा है। आज 5वां दिन है संसद की शीतकालीन सत्र का और जैसे ही कार्रवाई शुरू हुई वैसे ही सत्ता और विपक्ष के तेवर एक दूसरे के सामने क्या होंगे और ये आज क्या काम हो सकता है, आज की तस्वीर क्या होगी, इसकी झलक शुरुआत में ही देखने को मिल गई है। देखिए, 11 बजे संसद की कार्रवाई शुरू हुई, अभी 11:05 हुए हैं, यानी तकरीबन 5 मिनट की कार्यवाही में ही सदन में विपक्ष जोरदार हंगामा कर रहा है और ये हंगामा जो है वो अडानी और संभल के मुद्दे पर हो रहा है। और देखिए, इस हंगामे को देखते हुए बड़ी खबर यह है कि लोकसभा की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है, यानी 6 मिनट भी लोकसभा की कार्यवाही नहीं चल पाई और हंगामे को देखते हुए लोकसभा की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। अडानी के मुद्दे पर विपक्ष चर्चा चाहता है। स्थगन प्रस्ताव जो है वो कांग्रेस के सांसदों की तरफ से पहले ही सदन में रखा गया। अडानी के मसले पर विपक्ष अड़ा हुआ है, संभल के मुद्दे पर विपक्ष अड़ा हुआ है, साथ ही साथ संविधान दिवस पर भी चर्चा करना चाहता है विपक्ष ये बताने की कोशिश करना चाहता है या सदन के जरिए भी एक नैरेटिव विपक्ष गढ़ने की कोशिश करना चाहता है कि संविधान खतरे में है और इसके लिए वो संविधान दिवस पर चर्चा करना चाहता है। 12 बजे तक के लिए लोकसभा की कार्यवाही स्थगित हो गई है, लेकिन राज्यसभा की कार्यवाही अभी जारी है। सीधा आपको लिए चलते हैं। माननीय सभापति जी, आपके अनुमति से मैं आज की कार्यावली में मेरे नाम के सामने कर्म संख्या 4 पर उल्लिखित कागजातों को सभा पटल पर रखता हूँ। श्री सुरेश गोपी। Sir, with your permission, I rise to lay the papers on the table of the House listed against my name at serial number 3 in today's list of business. श्री संजय सेठ। Well, Chairman, sir, with your kind permission, I rise to lay on the table of the House a copy of each of the papers mentioned against my name at serial number 5 in today's list of business. श्री तोखन साहू। माननीय सभापति महोदय, आपकी अनुमति से मैं आज की कार्यसूची में क्रम संख्या 6 पर मेरे नाम के समक्ष सूचीबद्ध कागजों की एक प्रति हिंदी व अंग्रेजी। तो आप देखिए, संसद की कार्यवाही, लोकसभा की कार्यवाही तो स्थगित कर दी गई है हंगामे को देखते हुए। फिलहाल जो राज्यसभा की कार्यवाही है वो चल रही है, लेकिन इस बीच बड़ी खबर आपको ये भी दे दें कि संसद भवन में इंडिया ब्लॉक पर के जो फ्लोर लीडर्स हैं उन्होंने बाकायदा बैठक की है। खड़गे के ऑफिस में इंडिया ब्लॉक की मीटिंग हुई है और कैसे सरकार को सदन के अंदर घेरा जाएगा, फ्लोर पर कैसे सरकार को घेरा जाएगा, बाकायदा इसकी रणनीति इंडिया ब्लॉक से जुड़े हुए जो सांसद हैं उन्होंने बनाई है और उस पर बाकायदा चर्चा हुई है, जिसकी झलक या जिसकी बानगी हमें लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही देखने को मिली, जब विपक्षी सांसद अडानी और संभल के मुद्दे पर हंगामा करने लगे।